Which of the following is the world's richest region from marine biodiversity perspective, comprising 21 islands with estuaries, beaches, forests of the near shore environment, seagrasses, coral reefs, salt marshes and mangrove. तो मैंग्रोव भी है, सब कुछ है यहाँ पे। तो इसका आंसर है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी नहीं है, सुंदरबनी है। ऑप्शन ऑप्शन वाइज जाते हैं तो सो गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे है? ये आपको डाउन साउथ चेन्नई में के पास जो एरिया है वो आता है, and it is one of the richest area in the world in terms of marine biodiversity. Now, the biosphere reserve includes 21 islands along with estuaries, beaches, coral reef, mangrove, etc., dolphin, dugong, or dugong को sea cow भी बोलते हैं. Whales and sea cucumbers are also found here. The 21 islands located between Tuticorin and Dhanushkodi in Tamil Nadu were declared the Gulf of Mannar Marine National Park in 1986 and the Biosphere Reserve in 1999 as a buffer zone with the objective of conserving this area. In which type of climatic region do Uttar Pradesh and Bihar falls? यूपी और बिहार आपके कॉफिन कॉफिन क्लासिफिकेशन स्कीम में CWG में आता है। DFC इज फॉर अरुणाचल एंड साउथ में आपका आता है AS। तमिलनाडु है AW। तो इसको थोड़ा देख लेते हैं, जैसे कि AMW एम अगर मेंशन है तो मानसून है विथ शॉर्ट ड्राई विंड्स लाइक वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एंड साउथ ऑफ गोवा। ES हो गया आपका मानसून विथ टाइप ड्राई समर कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। AW आपका है साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू साउथ में आएगा आपका। और DFC देखिए अरुणाचल प्रदेश DFC है शॉर्ट समर एंड कूल वेट विंटर। फिर आपका E है पोलर के लिए, ET है टुंड्रा टाइप। नाउ इंडियाज टेरिटोरियल लिमिट एक्सटेंड्स टुवर्ड द सी अप टू हाउ मेनी नॉटिकल माइल्स? तो इसका आंसर होता है 12 नॉटिकल माइल्स। The straight line joining the parts coming out from interior towards the sea is called basic line, and the territorial water of the any country are called territorial areas. India's territorial boundary extends seaward up to 12 nautical miles. The exclusive economic zone extends up to 200 nautical miles from the baseline. ठीक है। Now, which of the following river valley is rich in coal reserves in India? तो इसका आंसर होगा तीनों। दामोदर भी है, सोन रिवर वैली भी है और महानदी रिवर वैली भी है। तो यहाँ पे थोड़ा वाइड रेंज में सोचना है। Now, coal deposits are found in various river valleys of India like Damodar River Valley, Son River Valley, Mahanadi River Valley, Pench Kanha Valley, Godavari River Valley, etc. Now, Damodar Valley, Jharia, India's largest coal field, Raniganj, India's second largest coal field, Bokaro, Giridih, etc. तो ये देखिए आपका झरिया जो है इंडिया लार्जेस्ट कोल फील्ड है रानीगंज में, और इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कोल फील्ड है। इंडिया जो लार्जेस्ट कोल फील्ड है वो है आपका झरिया। रानीगंज है इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कोल फील्ड। बोकारो, गिरिडीह एक्सेट्रा कम अंडर दामोदर वैली कोल फील्ड। सोन रिवर वैली पे आते हैं तो सोगोर, सिंगरौली एंड औरंगाबाद और कोल फील्ड्स कम अंडर दिस एरिया। Now, Mahanadi River Valley, Talcher and Sambalpur region of Odisha, Sonhat and Vishrampur, Lakhanpur region of Madhya Pradesh are prominent under this. Now, which of the following statement is true about sugar industry in India? तो शुगर इंडस्ट्री अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ एथेनॉल, सो इट्स अ वेट लूजिंग इंडस्ट्री, करेक्ट। महाराष्ट्र हैज इमर्ज एज द लीडिंग शुगर प्रोड्यूसर इन द कंट्री। उत्तर प्रदेश इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर। तो ये शायद तीनों स्टेटमेंट सही है अबाउट शुगर। Towards the end of summer, there are pre-monsoon showers, which are a common phenomenon in Kerala and coastal areas of Karnataka. Locally, they are known as आपका है मैंगो सावर। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। केरल में आपका देर आर प्री मानसून सावर विच आर कॉमन फेनोमेना इन केरला एंड कोस्टल एरियाज ऑफ कर्नाटका। केरला एंड कर्नाटका। और जो कॉफी होता है मैंगो सावर, और ब्लॉसम सावर होता है फॉर चेरी ब्लॉसम फॉर कॉफी रेन, तो वो होता है मेनली इन कर्नाटका। एंड मैंगो सावर इज इन बोथ कर्नाटका एंड केरला। In the plains of northern India, winter rainfall is caused by winter disturbance or jet streams. In Rajasthan, this rain is called मावट। तो राजस्थान में क्या बोलते हैं इस रेन को, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को मावट। द एटमोस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय द लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो ये आपका हो गया इंसुलेशन चैप्टर से क्वेश्चन। जैसे कि सन से जो आता है वो शॉर्ट वेव में आता है और अर्थ रेडिएट करता है आपको लॉन्ग वेव रेडिएशन।
नाउ द फ्रेज इक्वलिटी बिफोर लॉ यूज्ड इन आर्टिकल 14, ये आपका लिया गया है, हैज बीन बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। नो विच व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ इन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये था 2 years 11 month एंड 18 days। इसमें कौन कौन है आपके, देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी को थोड़ा समझ लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज फॉर्म्ड इन नवंबर, कब बनता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, नवंबर 1946 में बनता है, अंडर द proposal suggested by cabinet mission plan, ठीक है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज ड्राफ्टिंग कमिटी, इट वाज फॉर्म्ड ऑन अगस्त 29 1947, it was the committee entrusted with the responsibility of drafting new constitution। 7 मेंबर जो है यहाँ पे आपके बी आर अम्बेडकर है, गोपाल स्वामी अयंगर है, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर है, के एम मुंशी है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला है, माधव राव रिप्लेस कर करते बी एल मित्रा को, और टी टी कृष्णमाचारी ये रिप्लेस करते डीपी खेतन को। सो द कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड वाज पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया नवंबर 26 1949। Then it had total 22 parts, 395 articles, and there were 8 schedules. But at present, there are 22 parts, 395 articles, 12 schedules. The Council of Ministers in the state is collectively responsible to Legislative Assembly। क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली, आर्टिकल 164 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन states that now the chief minister shall be appointed by the governor and other ministers shall be appointed by the governor only on the advice of chief minister। The minister shall hold office during the pleasure of governor, and the constitution council of ministers shall be collectively responsible to the state legislature। Consider the following statement: in the post 73rd amendment era there has to be decentralization of, तो इसका आंसर आपका है decision making power system as a whole। Judicial power, no, that was not given। Administrative power, तो 73rd अमेंडमेंट आपका आता है 1992 में, डील्स विद पंचायती राज सिस्टम। दिस एक्ट इंक्लूडेड न्यू पार्ट 9 आर्टिकल 243, टोटल 15 आर्टिकल्स फ्रॉम ए टू ओ, ये ऐड होता है। along with this new 11th schedule was also added। कौन सा शेड्यूल आपका 11, a list of 29 सब्जेक्ट्स है इसके अंदर, मेंशन दिस लिस्ट अंडर प्रोविजन, ठीक है। और इसके बाद आता है आपका बलवंत राय मेहता कमिटी, constituted in January 1957, submitted its report November 1950, recommending a scheme of democratic decentralization autonomy, which eventually came to known as Panchayati Raj। The following are the basic recommendation made by committee। तो आपका इसमें क्या था, 3 लेवल्स का बात करते हैं, ग्राम पंचायत एट विलेज, मंडल परिषद और ब्लॉक समिति, पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल, जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। फिर ग्राम पंचायत शुड बी established by directly elected representative, while पंचायत समिति एंड जिला परिषद शुड बी फॉर्म बाय इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स। सो पंचायती राज गिवन, ये हो गया आपका। किसके रिकमेंडेशन बनता है एक्ट, तो ये थे एल एम सिंघवी कमिटी, जो 1986 में बनता है। मध्य प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट टू इनेक्ट द पंचायती राज एक्ट आफ्टर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। फर्स्ट होता है, लेकिन पहले सबसे पहले राजस्थान में आता है। नाउ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ राज्यसभा इंक्लूड्स द मेंबर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय सिटीजन, नहीं है। मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय सिटीजन थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, कौन करते हैं राज्यसभा में इंक्लूड, कौन कौन होते हैं राज्यसभा में, तो रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा इंक्लूड्स, तो ये आपके जो होते हैं दे आर सेंट फ्रॉम स्टेट काउंसिल और या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू, वहाँ से नॉमिनेट किया करके भेजा जाता है। तो इनको इन्हें कौन भेजते हैं, इनडायरेक्टली होता है, डायरेक्टली तो नहीं होता है, सिटीजन डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करता है, तो पहला तो गलत होगा। मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो 12 मेंबर तो होता है, ठीक है। मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय सिटीजन, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय सिटीजन थ्रू रिप्रेजेंटेटिव, हाँ इनडायरेक्टली होता है सिटीजन थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, हाँ ये मान सकते हैं। सो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबली, they are elected according to the proportional representation system by means of single transferable vote। The distribution of seats of the states for the Rajya Sabha happens on the basis of their population। Significantly, 16 seats are reserved in the Rajya Sabha for the state of Bihar। Now, President nominate 12 members from Rajya Sabha who have a special knowledge or practical experience in the field of art, literature, science, and social services। The purpose behind nominating such person is that eminent or famous person can go to Rajya Sabha without election। Now, the allocation of seats in the Rajya Sabha to the states and UT has been described in the 4th schedule of the Constitution।
तो देखिए एलोकेशन ऑफ सीट जो राज्यसभा का होना चाहिए ये कहाँ जाएगा आपका, फोर्थ शेड्यूल में दिया गया है। और द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज फिक्स्ड एट 250, ठीक है। ऑफ दिस 238 मेंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेटिव इनडायरेक्टली इलेक्टेड ऑफ द स्टेट्स एंड यूटी, while 12 members are nominated by the president। तो आपका एट प्रेजेंट 245 है। Now which of the following is concerned with the Supreme Court of India? तो appellate jurisdiction हाँ है, ओरिजिनल भी है, कॉलेजियम भी है। So in part 5 of Indian Constitution, the Supreme Court has been established under part 4, chapter 4। 124 से लेके 127 तक है, 124 से लेके 147 तक है। ठीक है। Not only federal court like USA, but final court of appeal like British House of Lords, its power jurisdiction can be extended as under appellate हो गया, आपको ओरिजिनल हो गया कॉलेजियम सिस्टम। Now the minimum age for contesting election to पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड बी, तो ये आपका होता है 21 ईयर्स, ये दिया गया है। 25 ईयर्स इन लोकसभा एंड 30 ईयर्स इन राज्यसभा। और 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एज रिड्यूस किया गया था 18 ईयर्स वोटिंग का। फिर है आपका विथ रेफरेंस टू द कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडियल डिस्ट्रिक्ट लेवल इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो इसमें थोड़ा ठीक है। एट व्हाट लेवल डज द पंचायत समिति ऑपरेट इन पंचायत राज स्ट्रक्चर, तो ब्लॉक लेवल बॉडी है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एस्टैब्लिश्ड एज द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट, तो ये आपका था नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, एनईएस। So National Extension Service was formulated in April 1953 and was inaugurated on 2nd October 1953। Launched for a period of 3 years, 1957। तो आपका ये दो चीज होता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। द कमिटी सबमिटेड रिपोर्ट इन November 1957, recommended a scheme of democratic decentralization। Now, which of the following are the objective of SEZ Act 2005? Generation of additional economic activity, promotion of exports of goods and services, creation of employment। So India was the first Asian country to set up an export processing zone in Kandla in year 1965 to boost export। फिर आपका what is the policy measures adopted by the government of India to improve the system of agriculture marketing? तो MSP भी है, मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक भी है, पब्लिक PDS भी है। Under agriculture marketing system, all those activities and services are included which are completed during the delivery of agriculture produce from the farm to consumer। फिर आपका विच कमिटी सजेस्टेड द इनैक्टमेंट ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002, तो है SBS राघव कमिटी। द SBS राघवन कमिटी सजेस्टेड इनैक्टमेंट ऑफ कंपटीशन एक्ट 9 2002। और यहाँ देखिए द competition act was passed by the government in the year 2002। it received the assent of the president in 2003। this act regulates Indian competition law। it replaced the monopolies and restrictive trade practices act 1969। ग्रे रेवोल्यूशन, या हाँ ये फर्टिलाइजर से हो गया आपका, पिंक हो गया आपको टोमेटो, सिल्वर हो गया एक से, रेड हो गया आपका टोमेटो एंड मीट प्रोडक्शन, और आपका पिंक हो जाएगा ओनियन प्रोडक्शन से। ये फिर से आया था, यहाँ देख सकते हैं हम लोग, रेड हो गया टोमेटो एंड मीट, सिल्वर हो गया एग, पिंक हो गया ओनियन एंड ग्रे इज फॉर फर्टिलाइजर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान वाज फोकस्ड ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो इसका आंसर है आपका 8 5 ईयर प्लान, जो कि इसमें से कोई भी नहीं होगा।